اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغام ملنے پر تاثرات۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ 31 مئی کو ہونے والے سرپرست اجتماع کی دعوت کا سلسلہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ مرکز الاولیاء لاہور میں شخصیات اجتماع کے کچھ مناظر۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ابتداءً آپ کو دکھاتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ آپ بھی متوجہ ہو جائیے کہ شرف الدین عطاری کے انتقال پر آپ نے ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عوفیہ عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی آصف عطاری، نگران بھٹائی کابینہ ٹنڈو آدم باب الاسلام پاکستان، مزید عمران عطاری، عرفان عطاری، عارف عطاری، طارق عطاری اور تمام سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی شاہد نگران پاک نے یہ خبر وحشت اثر دی کہ شرف الدین عطاری با عمر 39 سال انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے بھی چھوڑے، خرم عطاری 14 سال، نوفل عطاری 13 سال، تاشفین عطاری عمر 12 سال، نمراز عطاری عمر 8 سال۔ ہاں یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم شرف الدین عطاری کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، ان کی تمام خطائیں معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ بخش دے۔ الہ العالمین، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ، ان کی جوان موت سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ان پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما، بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ یا اللہ، ان کے تمام لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو ان کی وفات سے یہ 39 سال بیچارے دنیا میں رہے، عبرت عبرت عبرت، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب براعت آ رہی ہے، ظاہر نصیب ماہ شعبان میں کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ 20 سال ثواب کے لیے آپ سفر کر لیں، اور سارے بھائی مل کر ہو سکے تو
12,000 रुपए के तकसीम मतबूअत मकतबतुल मदीना बड़ा इसाल सवाब कर दें। इंशाअल्लाह मरहूम शरफुद्दीन का बेड़ा भी पार होगा, आप सबका भी बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मुझे गुनाहगार की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। पाबंदी से दावत इस्लामी के इज्तिमाअत की हाज़िरी, मदनी मुज़ाकरात सुने, मदनी काफ़िलों के हर महीने 3 दिन के मुसाफिर बने और सिर्फ़ मदनी चैनल देखा करें। गुनाह भरे चैनल की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखा करें, कहीं आखिरत बर्बाद ना हो जाए। और यतीमों का ख्याल रखें, बेचारे खुर्रम, नौफिल, ताशफीन, निमराज 4 मदनी मुन्ने बेचारे यतीम हो गए। अल्लाह इन पर रहम करे। 6 बच्चों की हलाकत पर शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का सूरी पैगाम जब वालिद सैयद कैसर अत्तारी को दिया गया तो उन्होंने इस पर मदनी चैनल को अपने तासुरात से आगाह किया। ये सब कुछ देखने चलते हैं मरकज़ुल औलिया, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा है, लैपटॉप में देखा, टीवी तो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन ये भाई सामी भाई है मेरे पास, इन्होंने मेरे लैपटॉप में आपका जो मेरे बारे में आपने दुआ की और मेरे बच्चों के लिए दुआ की। मैं आपसे मिलने को बड़ा बेचैन हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह कराची भी आपके पास आऊँगा, लेकिन मुझे क्या कि मुझे कोई आपसे कोई बात करा दे फ़ोन पे और मुझसे बात करें। और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए दुआ की, मेरे बच्चों के लिए दुआ की, ये आपका एहसान है मुझ पर। और मेरे पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं है, मुझसे कोई ऐसी बात नहीं होती कि मेरे जो बच्चे चले गए हैं। इंशाल्लाह मैं ये जो सामी भाई बैठे हैं मेरे साथ, इनके ही राब्ते से मैं हूँ और इनके साथ ही मैं इंशाल्लाह कराची आऊँगा और आपसे मिलूँगा। अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे फ़ोन करें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पीर साहब, आप हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे खानदान के लिए दुआ करें। मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे भी आप दुआ करें कि यहाँ पे बिल्कुल मेरा काम जिस तरह पड़े था, लेकिन 5-6 माह से मेरा काम कारोबार नहीं हो रहा। बच्चों का रिज़्क यहाँ पे लगा था, शायद वो बच्चे अपना रिज़्क साथ ही लेके चले गए हैं। पीर साहब आप से स्पेशल मेरे लिए दुआ करें। मदनी मुकालमा हुआ बराह रास्त मस्जिद और नमाजी हिस्सा दोम। निगरानी शुरा ने दिए मदनी फूल। मुख्तसरन मदनी मुकालमे का मदनी गुलदस्ता देखिए। मस्जिद का अदब, मस्जिद का मकाम और मर्तबा और एहतराम का एक मामला है। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि मसाजिद के साथ वाले जो घर होते हैं वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते। मस्जिद के गेट के साथ ही कचरे का ढेर लगा हुआ होता है। जो ऐसी चीज़ें खाकर आते हैं कि उससे बदबू होती है या पसीने होते हैं, तो इससे बहरहाल बचना चाहिए। आदमी जहाँ जा रहा होता है वहाँ का तो यार यहाँ लिबास कैसा होना चाहिए। किसी के मैयत में जाते हैं तो आपका लिबास बदल जाता है। आप किसी मजहबी शख्स से मिलने जाते हैं आपका लिबास बदल जाता है। किसी दावत या शादी में जाता है तो आपका लिबास बदल जाता है। मस्जिद में अल्लाह के हुजूर सद्दा करने गए, हाय हाय हाय, क्या मजे को मजा आ जाए यार, मजे को मजा आ जाए, मजे को भी मजा आ जाए। काश। एक मस्जिद है हमारे यहाँ जिसके फिनाए मस्जिद में अमरूद और अनार वगैरह के दरख्त हैं। आम लोग या नमाजी वगैरह ये फल वगैरह खा सकते हैं या नहीं? इसमें ये देखा जाएगा कि इसको लगाया किसने है और किस मकसद के लिए लगाया है। मस्जिद में इस तरह का तसर्रुफ अपनी ज़ात के लिए करने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद का सबसे अहम तरीन जो फर्द है वो हमारी मस्जिद का इमाम ही तो है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी तनख्वाह मिल सकती है, फलां को इतनी तनख्वाह मिल सकती है, तो अरे बेचारे को बच्चा बीमार है तो उसकी दवाई लाने का मसला। इमाम साहब अगर 1500 रुपए तनख्वाह बढ़ाने का अगर मुतालबा कर दें, अरे इमाम साहब आप तो अल्लाह वाले आदमी हैं, अल्लाह वाले आदमी के बच्चे मिट्टी खाएंगे। अगर कमेटी को इमाम साहब से कोई शिकायत है तो कमेटी का ये काम नहीं है कि वो नमाजियों के बीच में बैठकर इमाम साहब के ऐब बयान करती रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे इंसान फितरी तौर पर उसको पसंद नहीं करता। अब इबादत करनी तो इबादत में यकसुई चाहिए, साफ सफाई सुथराई नहीं होगी तो कैसे यकसुई आएगी। सारे लोग इतराज कर रहे थे कि दरियों से बदबू आ रही है, कमेटी को बदबू नहीं आ रही होती है। सटा करेगी तो पता चलेगा ना कि दरी से बदबू आ रही है नहीं आ रही है। मस्जिद का क्या होता है, मस्जिद के खादिम साहब की जिम्मेदारी है सफाई करनी है। उसने उठाया पोछा, वजू खाने का नल खोला और पानी नीचे गिरा तो उसने पोछे को नीचे डाल दिया। वो जिस वजू खाने में लोग जो है वो थूके फेंक रहे हैं, वजू कर रहे हैं, वो उसी में जो है ना वो पोछे को यूं यूं करके उसको मस्जिद आने मस्जिद में आकर जो है वो ये आम जगह की नहीं, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई के लिए
मखसूस किए गए, यानी बैतुल्ला, इनको सफाई सुथराई का तरीका सीखना चाहिए। मस्जिद की कमेटी का भी जो निज़ाम है ना, ये खाली सदन दीनी काम है, ये आपका कारोबार या तिजारत है ही नहीं। हिसाब किताब योम हिसाब, इसको याद रखिएगा। मस्जिदों में कुर्सियों का रिवाज बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग बाहर से चलकर आते हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। इसके बारे में मदनी फूल अता फरमा दीजिए। जी मुफ्ती साहब, बिला ज़रूरत शरई तो कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप जो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपने किसी से कुर्सी पर नमाज पढ़ने का शरई तरीका सीखा, मेरा गुमान ये है कि शायद 99.99% ये शायद ये जवाब दे देंगे, पूछा किसी से नहीं है, देखते थे तो हमने भी नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। वाज तो ऐसे जामे से बाहर हो जाते हैं, हमको क्या जरूरत है पूछने की, हम भी मुसलमान हैं, हमको पता है। आपके मुसलमान होने ना होने पर कौन आपसे बहस कर रहा है? आपको शुरू से यही है, मुझे जरूरत ही नहीं है पूछने की, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझदार आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की। बदकिस्मती के साथ इल्म दीन सीखने के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है। मस्जिद को मुस्तकिल रिहाइश बनाना जायज़ नहीं है। भाई हम भी मुसलमान हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, हम आके खाएंगे पिएंगे सोएंगे जो भी करेंगे, आप हमको मना करने वाले कौन होते हो? इसको आप कैसे समझाएंगे? बेचा करो एक शख्स आकर आपसे यूं करता है, आप क्यों रोक रहे भाई? मस्जिद आपका घर है? नहीं, अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं आकर रुकूंगा यहाँ पर। असल बात ये है कि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है, लेकिन क्या ये सोने के लिए है, क्या ये रिहाइश बनाने के लिए है? मस्जिद का तस्वुर इबादत के लिए है। हुक्म शरीयत में हमारी सोच का दखल नहीं है। तबीयत शरीयत के मुताबिक ढलेंगी, ना कि तबीयत के मुताबिक हम शरीयत को बदलेंगे। मजलिस डॉक्टर्स के तहत मदनी हल्का शहदादपुर बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में हुआ, आपको भी दिखाते हैं। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। 31 मई को सरपरस्त इज्तिमा का आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इनकाद किया जा रहा है मजलिस मदरसतुल मदीना के तहत, जिसमें निगरान शूरा दिन 3 बजे सुन्नत व भरा बयान फरमाएंगे। इज्तिमा की तैयारियों के ज़िम्ने मुलाकातें, नेकी की दावत और इस्लामी भाइयों के तासुरात आप भी देखिए। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। इंशाअल्लाह निगरान शूरा के इंशाअल्लाह 31 मई के होने वाले बयान में इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी तरफ से शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, और अपनी तरफ से दूसरे जो लोग हैं उनको भी दावत की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इज्तिमा में शिरकत करें। भी मदरसतुल मदीना गुलशन जमाल के ज़िम्मेदारान यहाँ आए हैं मेरे पास, और ये दावत दी है एक रोज़ा इज्तिमा 31 मई को जो हो रहा है फैज़ान मदीना में, तो इंशाअल्लाह इसमें भी शिरकत करने की नियत करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हाज़िर हों। 31 मई को ये प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह इसमें मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा अल्लाह ने चाहा, और दोस्तों को भी दावत दूंगा कि इसमें शिरकत करें। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदरसतुल मदीना गुलशन जमाल से जो इस्लामी भाई हाज़िर हुए हैं 31 मई की दावत के हवाले से, जो निगरान शूरा इमरान अत्तारी मद्दज़ल्लहुल आली के बयान के हवाले से आए हैं, मैं खुशामदीद कहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ कि उसमें हाजिर होऊंगा। कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, या इलाही ताअबद जारी रहे ये सिलसिला, मदनी चैनल
چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث۔ جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں بھی اپیل کروں گا آپ سے کہ آپ کو بھی جانا چاہیے۔ مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، اور شیطان لعین رنجور ہے، مغموم ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ میری بھی نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں مدنی چینل کو ہمارے گھر میں شوق سے دیکھتے ہیں، اور اس کی جو تعلیمی ملتی ہے اور جو دینی تعلیمی ہوتی ہے اور جو چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں جو مدنی چینل سے ملتی ہیں اور کسی سے ہم کو وہ نہیں ملتی۔ اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا، اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا، اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا۔ میں نے ان کی دعوت قبول کی ہے، انشاءاللہ اپنے اتوار والے دن انشاءاللہ ہم شرکت کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اتوار والے دن انشاءاللہ تعالیٰ جو اجتماع مجلس شورا کے نگراں حاجی عمران اتاری صاحب بیان فرمائیں گے، اس کی دعوت کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں خود بھی حاضر ہوں گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ دعوت دوں گا۔ مدنی چینل نار دوزخ سے امان دلوائے گا، مدنی چینل نار دوزخ سے امان دلوائے گا، انشاءاللہ آپ کو باغے جنا دلوائے گا، مدنی چینل سنتوں کی۔ دعوت اسلامی کا مرکز سے یہاں قافلہ آیا ہوا تھا، اور اس نے 31 مئی کو جو یہاں پروگرام ہو رہا ہے اتوار کے دن، اس کی دعوت دی، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم اور ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں گے۔ 31 مئی کو اجتماع کا بولا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آنے کے لیے تیار ہے، اور بہت اچھا اجتماع کیا ہوا الحمدللہ، اور ہم لوگ دعوت حاضر ہے۔ ہم لوگ ہمارے پاس فیضان مدینہ سے قافلہ آیا ہوا ہے اپنے دعوت دینے کے لیے۔ بروز اتوار 31 مئی فیضان مدینہ میں نگران شورا محمد عمران اتاری کا بیان ہے، اس میں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اوروں کو بھی لے جائیں گے۔ 31 مئی کو جو دعوت ہمیں دی گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں شرکت بھی کروں گا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے اراکین شورا اور پاکستان کے نگران کابینات کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ کارکردگی جائزہ ایک انداز ہے کہ وہ موجودہ کارکردگی ہدف کے لحاظ سے، اور ایک اس لحاظ سے ہے جمادی الاولیٰ سے جمادی الاخریٰ تک رجب کی کارکردگی، ابھی وہ ہم اس سے بعد کے مشورے میں لیں گے۔ اس لحاظ سے صدائے مدینہ میں میلادی کابینات نے 118% ترقی کی ہے، دوسرے نمبر پر 86% ترقی مہروی کابینات کی ہے، تیسرے نمبر پر حجویری کابینات کی 23% ترقی ہے صدائے مدینہ میں۔ مسجد درس میں مہروی کابینات کی 82% ترقی ہے، 839 سے 1531 پر پہنچے ہیں۔ مسجد درس میں تو بہت ماشاءاللہ بوسٹ کیا ہے۔ امجدی کابینات کی 14% ترقی رہی، مسجد درس میں 972 سے 1106، تو ماشاءاللہ یہ بھی ترقی ہوئی ہے۔ تاریخی بھی 3% ترقی ہوئی ہے،
जुनैदी की 6% तरक्की हुई है, सोहरवर्दी की 4% तरक्की हुई है, सिद्दीकी की 15% तरक्की हुई है माशाल्लाह। 894 से 1029 दर्स हो गए। हजवरी की 4% तरक्की, मुहम्मदी की 29% तरक्की हुई माशाल्लाह। बापू मरहबा। 326 से 422। असहाबी 2% तरक्की हुई, 3 दर्स बड़े मकाम शुक्र। मिलादी की 67% तरक्की हुई, 12 से 20 दर्स हो गए। तो ये वाकई ये इब्तिदान ये जो 8 का बढ़ना जो ना 200-400 दर्स से ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसी नहीं जगह सही कोई अर्ज नहीं दे दिए जा सकते कि वहाँ पर बिल्कुल नए नए इस्लाम में नया नया माहौल। चौक दर्स में अत्तारी का 8% तरक्की हुई है, सेरानी 53% तरक्की हुई है, सोहरवर्दी 40% तरक्की हुई, चिश्ती में 14% तरक्की हुई, गजाली 7% तरक्की, हजवरी 15%, सिद्दीकी 19%। ज़ैली हल्कों के लिहाज से 214% महरवी काबिनात की चौक दर्स में तरक्की है माशाल्लाह। 232 से 728 चौक दर्स पे पहुँचे। मदरसतुल मदीना बालिगान में भी महरवी काबिनात की 72% तरक्की हुई, 166 से 286 पर पहुंचे। मिलादी काबिनात की 195% तरक्की हुई। साथ ही बैठा मैं तो योम तातील एतिकाफ मिलादी काबिनात 167%। मदनी मुज़ाकरा के शुरका के लिहाज से मुहम्मदी काबिनात का पहला नंबर आया है, 160%। पिछले माह से तकाबुल करते हुए माशाअल्लाह। हफ्तावार कैसिड इज्तिमा सेरानी काबिनात 200% तरक्की हुई। इलाक़ाई दौरा जुनैदी काबिनात 147% तरक्की हुई माशाअल्लाह। जाहिद भाई मरहबा। 3 दिन के काफलों में मिलादी का 300% माशाअल्लाह। 12 दिन के काफलों में महरवी काबिनात, ये लगता है महरवी की तरकीब बन गई भाई। 30 दिन के काफले अत्तारी काबिनात। आओ तो पहले लेके वो उम्र में चलो आगे पहला नंबर अपन। मदनी नामात के वसूल की तरक्की मिलादी काबिनात। पिछले जमादुल ऊला और जमादुल उखरा की कारकर्दगी का तकाबुल, यानी इस माह में पिछले काम के मुकाबले में तरक्की का तनासुब सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान मिलादी काबिनात में, उसके बाद महरवी काबिनात इस्लामाबाद, पिंडी, अटक वगैरह जो ये एरियाज़ हैं इनमें। और जो मुस्तकिल एक जो हमारे वो काम है मौजूदा कारकर्दगी के लिहाज से इसमें अत्तारी काबिनात का पहला नंबर रहा है और चिश्ती काबिनात का दूसरा, सोहरवर्दी काबिनात का तीसरा नंबर। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने गुज़श्ता दिनों इयादत फरमाई, दुआए सेहत की। हर खता तो दरगुज़र कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। आमिना के लाल सदका फातिमा के लाल का, आमिना के लाल सदका फातिमा के लाल का, दूर शाम रंजो गम कर बेकसो मजबूर की, दूर शाम रंजो गम कर बेकसो मजबूर की। रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी काफिला ने गुज़श्ता दिनों साकिरान बलूचिस्तान में मस्जिद इफ्तिताह के मौके पर सुन्नत भरा बयान किया। कुछ प्यारे मनाजिर बलूचिस्तान से। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको
दुआए मदीना। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान से मदनी खबरें पेश खिदमत हैं, जहाँ रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी की शख्सियात इज्तिमा में शिरकत हुई, जबकि मदनी चैनल रिले मजलिस की काविशें भी मुलाहजा कीजिए। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे दावत इस्लामी के इंतज़ामिया ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके चैनल पे कुछ आप लोगों को उनके बारे में ये बता सकूँ कि जी मदनी चैनल बहुत अच्छा है, और जितने भी मेरे दोस्त भाइयों लोगों को इससे देख के कुछ इनसे सवाल करके अपना उनको जवाब मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दीनी कामों में हिस्सा लेना चाहिए, और इंशाअल्लाह 2 जून को अब ये जो इज्तिमा हो रहा है नवंबरी में, मैंने सब केबल ऑपरेटरों को दावत दी है। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि उसमें हिस्सा लूँ, और जो भी मालूमात जिस तरीके से भी अल्लाह ताला हर आदमी को तौफीक दे कि वो नेकी के काम में दिलचस्पी से मालूमात में अपने आप को उसमें करे। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। इसमें है फैज़ान कुरान, इसमें फैज़ान हदीस, इसमें है फैज़ान कुरान, इसमें फैज़ान हदीस। जल मरे और खाक डाले सर पे शैतान खबीस, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल में नबी की सुन्नतों की धूम है, मदनी चैनल में नबी की सुन्नतों की धूम है। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया